Dear students, in this video lecture, I will give you the brief summary of chapter solution class 12th chemistry. So let's begin students topic, that is the we are just here we are doing the recap of chapter second, जो कि आजकल हमारा chapter 1 है क्लास 12th chemistry का, because solid state जो है वो delete हो गया है. तो solution chapter जो है now it is considered as chapter 1, otherwise in old edition it's chapter 2. So let's see and we will revise the chapter, that is the solution. So solution, I think you all know because we read about the now and it's time for the examination. So solution क्या है? It's a homogeneous mixture of two or more than two components. So what is solution? Solution is a homogeneous mixture. Homogeneous means which cannot be separated out with the simple procedures or with the naked eyes. We cannot find out where is the solute and where is the solvent. So homogeneous जो mixtures होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? Solutions. So homogeneous mixture, those are not easily separated even by fractional distillation or by any physical method. हम इन solute और solvent को separate नहीं कर सकते. So homogeneous mixture जो है, they are mixtures are known as solutions. So solution जो है, solution हमारा can be categorized into three categories, that is the solid solution. Solid solution, हमारा जो solution है वो solid solution हो सकता है, and जो हमारा solution है it can be also a liquid solution, liquid भी हो सकता है, and solution can be a gaseous solution, हमारा जो solution है वो gaseous भी हो सकता है. Solution के two parts होते हैं. Solution is having a two parts. अगर हम देखें तो parts of a solution, parts of solution. अगर हम solution के parts देखें तो what are they? Solution में जो less amount में होता है, the lesser जो quantity है, it is known as solute. हम इसे basically one component और second component भी कह सकते हैं. तो जो किसी के अंदर डिसॉल्व हुआ है या जिसकी क्वांटिटी कम है, हम उसे क्या कहते हैं? सॉल्यूट. सो सॉल्यूट एंड द सेकंड वन इज सॉल्वेंट. So because I am giving the just a recap or just we are doing the summary or just here we are just doing the recapping of a chapter, so I will just write a brief. So solute, that is the less in amount. तो जो भी हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के दो पार्ट्स होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें शुगर इन वाटर, तो शुगर जो है हम अगर 1 टीस्पून या टेबल स्पून लेते हैं, वाटर इज अ 1 ग्लास, तो वाटर जो है दैट इज एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट जिसके अंदर हम डिसॉल्व कर रहे हैं, एंड इट इज इन अ बिग और लार्ज क्वांटिटी. और सॉल्यूट जो है दैट इज इन अ स्मॉल क्वांटिटी. सो लेस इन अमाउंट, और जो सॉल्वेंट है दैट इज दी मोर इन अमाउंट. तो जो ज्यादा होगा दैट इज नोन एज सॉल्वेंट और जो कम होगा दैट इज नोन एज सॉल्यूट. तो ये हमारा सॉल्यूट जो है वो लिक्विड भी हो सकता है, सॉल्यूट हमारा गैस भी हो सकता है, सॉल्यूट जो है वो हमारा सॉलिड भी हो सकता है. That is why we are consider here that solution are of three types: solid, liquid and gas. अगर हमारा मेजर पार्ट जो है वो जो सॉलिड होगा, सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड होगा, तो हमारा जो सोल्यूशन है वो ऑटोमेटिकली सॉलिड सोल्यूशन हो जाएगा. तो हम सॉलिड सोल्यूशन जो है फर्दर हम इसे 3 टाइप्स में कर सकते हैं, दैट इज गैस इन सॉलिड. यहाँ पे गैस इज एक्ट एज अ सोल्यूट and solid is act as a solvent, and then liquid in solid. So here that is the big or more in amount, and solid that is a more in amount, and then last one is solid in solid.
सो यहाँ पे ये जो हमारा सॉल्यूशन है वो बेसिकली सॉलिड ही रहेगा, बिकॉज जो हमारा एक्सेस अमाउंट वाला है दैट इज द सॉलिड। तो सॉलिड सॉलिड सॉलिड, जो सॉल्यूट है जो लेस अमाउंट है दैट इज द गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। बट हमारा मेन जो कंपोनेंट है या जो हमारा सॉल्वेंट है वो सॉलिड है, तो सॉल्यूशन का नाम ही आ गया सॉलिड सॉल्यूशन। सेम सिमिलरली वी आर हैविंग दिस वन, हम इसी को इसी तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। लिक्विड भी इसी तरह से कैटेगराइज हो जाएगा, दैट इज द गैस इन लिक्विड, then we are having liquid in liquid, and then we are having the solid in liquid. So here we are having the more और जो हमारी एक्सेस जो है क्वांटिटी दैट इज द लिक्विड, जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड है और उसके लिए हमारा जो सॉल्यूशन है वो लिक्विड कहलाएगा। सोल्यूट जो लेस अमाउंट है दैट इज द गैस, दैट इज द लिक्विड एंड दैट इज द सॉलिड। इसी तरह से वी आर हैविंग द गैसियस सॉल्यूशंस, तो सेम हम गैसियस सॉल्यूशन को भी इस तरह से कैटेगराइज कर लेंगे। हमारा जो मेन यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो गैस है, गैस के अंदर गैस भी हो सकती है, गैस के अंदर लिक्विड भी हो सकता है, मींस जो लेस क्वांटिटी है दैट वुड बी अ लिक्विड, दैट वुड बी अ सॉलिड, दैट वुड बी अ गैस, बट जो मेजर पार्ट है दैट इज द गैस। सो से सिमिलरली वी आर हैविंग गैस in gas, then we are having liquid in gas, and then we are having solid in gas. So first of all here solution क्या है, homogeneous mixture किसका we are can we say कि solid in solid, liquid in solid, gas in a solid, जो भी मेजर पार्ट होगा, बिकॉज सोल्यूशन के दो पार्ट होते हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। एक्सिस जो है दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, जरूरी नहीं है कि सॉल्वेंट लिक्विड ही हो सकता है, सॉल्वेंट गैस भी हो सकता है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट सॉलिड भी हो सकता है, सॉल्वेंट लिक्विड भी हो सकता है। सो जो सॉल्यूट है सेम इट कैन बी अ गैस, इट कैन बी लिक्विड, इट कैन बी अ गैस। सो हियर आई नोट कि अगर वो सॉलिड है, मेजर पार्ट अगर हमारा सॉलिड है और स्मॉल पार्ट हमारा गैस लिक्विड और वो है, बट जो हमारा मेन एक्सिस में होगा दैट द नेम ऑफ अ सॉल्यूशन। तो हम इसके लिए हम एग्जांपल्स देख लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम लोग देखेंगे, चलो हम गैस से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे गैस इन गैस, तो हमारे पास बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारी एयर। एयर में वी आर हैविंग ऑक्सीजन इन नाइट्रोजन, कि नाइट्रोजन इज 78% एंड ऑक्सीजन टू 20 और अदर गैसेस ऑफ द हीलियम आर्गन। तो यहाँ पे हम एग्जांपल के लिए लिख लेते हैं, वी आर राइटिंग एग्जांपल्स हियर। यहाँ पे एग्जांपल में लिख लेते हैं, एग्जांपल आ गए हमारे। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं O2 इन N2 और वी कैन आल्सो राइट ऑक्सीजन इन नाइट्रोजन। हमारा एयर जो है दैट इज द परफेक्ट एग्जांपल जिसमें बहुत सारी गैसेस मिक्स होती हैं। आप इसके लिए हीलियम और आर्गन और वाटर वेपर्स गैस है इन एयर भी कर सकते हैं, इन एयर और इन नाइट्रोजन, ये भी आप लिख सकते हैं एग्जांपल्स में, ठीक है। देन लिक्विड इन गैस, गैस के अंदर लिक्विड अगर हम लिखना चाहें तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज द इथेनॉल। इसका एग्जांपल हम लिख लेते हैं, इथेनॉल, इथेनॉल इन नाइट्रोजन, यहाँ मैं एग्जांपल्स लिख रही हूँ। देन सॉलिड इन गैस, जो सॉलिड होता है वो गैस में कौन सा होगा, दैट इज अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे वी कैन राइट कैम्फर, कैम्फर, कैम्फर इन N2 और नाइट्रोजन। So these are the examples for the gaseous solutions, जहाँ पे गैस इन गैस है, ऑक्सीजन इन नाइट्रोजन, liquid ethanol in nitrogen, solid in gas, camphor in nitrogen. So these are the examples.
सिमिलरली गैस इन अ सॉलिड, अगर हम लोग सॉलिड की एग्जांपल करें तो गैस इन सॉलिड में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ हमारा एग्जांपल आ जाएगा. बेटर आई कैन राइट विद डिफरेंट कलर. हियर वी कैन राइट हाइड्रोजन इन प्लेडियम. तो हाइड्रोजन जो है वो हमारा गैस है और प्लेडियम जो है वो सॉलिड है. एग्जांपल आ गया है. देन वी आर राइटिंग लिक्विड इन अ सॉलिड. तो इसके लिए हम एग्जांपल लिख सकते हैं अमेलगम, amalgam of mercury in जो हमारा what we called that's it, amalgam of mercury. Okay, then what here what we are right, amalgam of mercury का ये solution हो गया liquid in solid, because we all know that mercury is a liquid matter. एंड देन सॉलिड एंड सॉलिड, अगर हम सॉलिड की बात करें कि सॉलिड में सॉलिड कौन सा है, तो यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हैं. दैट इज दी कॉपर, कॉपर इन गोल्ड, जो हमारी ज्वेलरी होती है. एंड जो गोल्ड है, एज वी नो दैट इट इज अ मैलेबल एंड डक्टाइल. इसकी जो स्ट्रेंथ होती है इतनी ज़्यादा नहीं होती, इजीली मैलेबल एंड डक्टाइल है. तो इसको डक्टिलिटी थोड़ा लेस करने के लिए, थोड़ा इसको स्ट्रेंथ देने के लिए इसमें कॉपर को मिक्स किया जाता है. सो दीज आर द एग्जांपल फॉर हियर. एंड देन गैस इन लिक्विड, ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली वाटर में डिजॉल्व होती है. तो यहाँ पे हम एग्जांपल लिख सकते हैं, दैट इज दी ऑक्सीजन इन वाटर. ठीक है. देन वी आर हैविंग लिक्विड इन लिक्विड. अगर हम लिक्विड इन लिक्विड की बात करें तो यहाँ पे हम एग्जांपल दे सकते हैं इथेनॉल, इथेनॉल इन वाटर. ये लिक्विड इन लिक्विड हो गया. और अगर हम बात करें सॉलिड इन लिक्विड, तो आप शुगर को पानी में एग्जांपल दे सकते हैं, या फिर हम NaCl सॉल्ट को एग्जांपल दे सकते हैं. तो यहाँ पे हम इसका एग्जांपल दे सकते हैं शुगर, और आप इसे ग्लूकोज लिख लो, बिकॉज हम जो हमारा बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है हम उसमें मोनोसेक्राइड्स पढ़ते हैं. तो ग्लूकोज इन वाटर. इवन यू कैन राइट दी सॉल्ट इन वाटर. तो आप एग्जांपल लिख सकते हैं. सो सोल्यूशन, सोल्यूशन आपकी ये होगी. एंड जो भी मेजर पार्ट होगा, अगर वो सॉलिड है तो सॉलिड सोल्यूशन कहलाएगा, लिक्विड है तो लिक्विड सोल्यूशन कहलाएगा, गैस है तो गैस कहलाएगा. और जो भी उसमें माइनर होगा, अगर वो गैस है या सॉलिड है लिक्विड है, उसके हिसाब से हमने सॉलिड लिक्विड गैस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है. नाउ हियर वी गॉट द सॉल्यूशन की सॉल्यूशन कैसे निकालना है. नाउ हाउ वी कैन फाइंड द स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशंस. हमें कैसे पता चले, बिकॉज हमने तो ये दिखा दी कि सॉल्यूशंस हैं. सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ या कंसंट्रेशन कितनी है उसमें, उसे निकालने के लिए हम बहुत सारे मेथड्स यूज करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, either you can just make a note of it and then begin with the next topic. Okay, how to find the concentration of a solution. So इसका screenshot ले लीजिए. So shall we move further? Okay. Now how we can find out the concentration of a solution. तो solution की दो parts हैं, एक solute और एक सॉल्वेंट. हम लोग बेसिकली जो सोल्यूशन चैप्टर है उसमें हम बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में ही पढ़ेंगे. कहने को अगर हम एयर की बात करें तो एयर इज हैविंग सो मेनी लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, हीलियम, आर्गन. बट एयर इन दिस चैप्टर वी आर ओनली डीलिंग विद द बाइनरी सॉल्यूशंस, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट. सो हम बाइनरी सॉल्यूशन की अगर बात करें, बाइनरी सॉल्यूशंस जिसमें एक हमारा सॉल्वेंट है और एक हमारा सॉल्यूट है. इस तरह से अगर हमने बहुत सारे सॉल्यूशंस बनाए हैं, हमें नहीं मालूम है कि हाउ मच सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन अ सॉल्वेंट, बट हाउ वी कैन जस्ट फाइंड आउट द कंसंट्रेशन. तो इसके लिए हमारे पास मेथड्स हैं.
So methods to find concentration of a solution. सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कैसे निकालनी है? सो फर्स्ट मेथड इज दैट mass percentage. I am just giving you brief summary of this chapter. mass percentage जिसे हम W by W से लिखते हैं. How we can just find out mass of solute, और हम कह सकते हैं कंपोनेंट जिसका भी आप निकालना चाहे सॉल्यूट या सॉल्वेंट का, मास ऑफ सॉल्यूट और वन कंपोनेंट जिसका भी आप निकाल रहे हैं, वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन में कौन कौन है? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों का मास लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई विद 100 क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं. सो दिस इज द फर्स्ट मेथड. Second method is volume percentage. Volume percentage, that is the V by V, that is the volume of one component. बेसिकली हम यहाँ पे सॉल्यूट की बात करेंगे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, means volume of solute and volume of solution solvent multiply with 100 and percentage लगा देंगे. Third one is that ppm, and ppm that is the parts per million. उसके कितने पार्ट्स हैं पर मिलियन में? तो इसे लिखने के लिए हम कैसे लिखेंगे? पार्ट्स ऑफ solute divided by parts of solution multiply with 10 to the power 6. Then the fourth one we are having, that is the mass percentage, sorry, not a mass percentage, mole fraction. That is the fourth one is mole fraction. हम किस तरह से mole fraction find out करते हैं? इसको मैं इसके नीचे लिख लेती हूँ. That is the number of moles of solute divided by total number of moles of solution. इसे हम कहते हैं that is the mole fraction. अगर आप सॉल्यूट को ले लेते हैं, मानो आपका जो A है वो आपका सॉल्वेंट है, ठीक है, और B जो है दैट इज दी सॉल्यूट, तो हमें सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं. तो नंबर ऑफ मोल्स अगर हम निकालते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम बेसिकली x का यूज करते हैं, स्मॉल x का, दैट इज दी मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट. जो भी उसका कितना मास है और उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है वो आपको दे देगा नंबर ऑफ मोल्स किसके? सॉल्यूट के. इसी तरह से आप सॉल्वेंट के निकालेंगे, दैट इज दी, ये क्या है हमारा, हम इसके लिख लेते हैं, ये नंबर ऑफ मोल्स. थोड़ा इसको बड़ा करके लिख लेते हैं, यहाँ पे इसे हम बड़ा करके तो लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स का जो सिंबल है दैट इज द स्मॉल x, इस तरह से निकालते हैं. मास ऑफ सॉल्यूट हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हम सॉल्यूट का निकाल रहे हैं, तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, और मानो उसे हमने इंडिकेट कर दिया कि वो XB है. इसी तरह से हम XA अगर हमारा क्या है दैट इज द सॉल्वेंट, तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, तो ये क्या है? दिस इज द
मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, इसको हम लिख लेते हैं दैट इज द मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो इस तरह से निकल गया। अब हमें मोल फ्रैक्शन कैसे निकालना है, मोल फ्रैक्शन कैसे आ जाएगा, x किसी का भी अगर आप सॉल्यूट का निकालते हो तो b इज इक्वल टू इसके मोल जो नंबर ऑफ मोल्स ऊपर आ जाएंगे, टोटल लिखा है मैंने दैट इज XA प्लस XB। सो दिस इज द वे हाउ वी कैन फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन। सो इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, इसके लिए भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। आई फर्स्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, ले लिया। Sure. How to find out the moles, mole fraction? मान लो हमें दिया है 6 ग्राम ऑफ हम लोग ले लेते 6 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये आपका क्या है, सॉल्यूट है, और ये क्या है आपका सॉल्वेंट। ये बड़ा पार्ट है, ये हमने स्मॉल लिया है। यहाँ पे मुझे अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स किसके निकालने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। अगर कोई आपको और कंपाउंड दिया होगा तो उसका फॉर्मूला भी साथ में दिया होगा। तो मैंने अभी बोला कि गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो गिवन मास इसका कितना है 6, और इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, सोडियम का सिंबल होता है 1123 और Cl का सिंबल होता है 1735.5। ठीक है, तो इसका अगर मॉलिक्यूलर मास लेना है तो इसमें सोडियम का एक ही एटम है, मल्टीप्लाई विद 23 एटॉमिक मास ले लेंगे, प्लस एक ही क्लोरीन का है 1 मल्टीप्लाई इसका मॉलिक्यूलर मास है 35.5। तो ये क्या हो जाएगा 623 प्लस दैट इज 35.5, और ये क्या हो जाएगा 6, दोनों को हम प्लस कर लेंगे दैट इज, अगर आप दोनों को प्लस करते हैं 0.5 इधर चला जाएगा एंड 8 एंड 58। सो दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्ट। आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसको पॉइंट लगाइए, ये 60 हो जाएगा और 58 इससे छोटा ही है, और ये आपका आ जाएगा 0.1। तो 0.1 जो है दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। इसी तरह से हम सॉल्वेंट का निकाल लेंगे। तो सॉल्वेंट के लिए मुझे अगर मैं वाटर का निकालती हूँ, वाटर के कितने नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स। तो वाटर का मुझे गिवन मास 18 दिया हुआ है, और मॉलिक्यूलर मास अगर मैं देखूँ 1/1 एंड ऑक्सीजन का सिंबल होता है 8/16। तो ये क्या हो जाएगा, इसके यहाँ पे दो एटम है 2 into 1 प्लस इसका एक ही यहाँ पे एटम है 1 into 16। तो दैट इज 18 and 2 multiply with 1 2 and plus 16 and it will be 18/18 and that 1। तो नंबर ऑफ मोल्स जो वाटर है उसका 1 आ गया है, और जो हमारा सॉल्ट है उसका 0.1 आ गया है। तो अगर आपने मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्ट। अगर सॉल्ट का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट डिवाइड। ये मैं जस्ट आपको एक रफ एग्जांपल दे रही हूँ, आई एम जस्ट गिविंग हियर द रफ एग्जांपल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो इस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट तो 0.1 है, और टोटल कितना है 0.1 प्लस 1 दैट इज दी 0.1 एंड 1.1। तो हम इन दोनों को तो कैंसिल आउट कर सकते हैं इनटू 10, एंड ये आपका हो गया 1/11। इसको सॉल्व करने के लिए आप पॉइंट लिखिए, ये 10 हो जाएगा, स्टिल इट इज स्मॉलर देन 11। हम अगर यहाँ पे एक और 0 लिखते हैं नाउ इट विल कम 100 एंड देन 99। जो हमारा मोल फ्रैक्शन जो है दैट इज दी 0.09। मैंने एक रफ एग्जांपल लिया था उसके साथ आपको शेयर कर दिया है। देन हाउ नेक्स्ट method, I hope you can understand. If you still have any doubt, just let me know and send a message in my comment box. And then another methods
Take a screenshot of this one. Okay. So another methods to find out the concentration of a solution जो कि हमारी NCERT बुक में अवेलेबल है and we should get a little summarization for the board examination. That is the molarity. So molarity means number of moles of a solute divided by volume of solution in liter. ठीक है. सो ये मोलैरिटी है एंड इसकी जो यूनिट होती है दैट इज द मोल पर लीटर. सेम हम लोग मोलैरिटी को कैपिटल एम से लिखते हैं एंड अनदर मेथड टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन दैट इज द मोलैरिटी. ये मोलैरिटी है, ये मोलैरिटी है. तो मोलैरिटी मींस सेम द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट divided by mass of solvent. सिर्फ solvent का लिखना है किसमें, in kg, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर kg, right? So these are the different methods by which we can find out the concentration of a solution. So you just summarize the various formulas for that. And in next video I will just tell you what are azeotrops and what is the positive and negative deviations and what are the colligative properties. And with this we can end the chapter and we will prepare for your board examination. So just note it down and do practice. Till then you take care and bye bye.